types of photosystem which play a very important role in the process of photosynthesis. Okay, because these two photosystem, they help in absorbing the solar energy radiation and helping in the process of photosynthesis. Okay, actually, what is photosystem? Photosystem is a system which comprises of many molecules of chlorophyll that absorb the solar energy, and when they absorb the solar energy, they get excited, and they, when the atoms or when the molecules of chlorophyll, when they absorb so much of energy, they get excited, and the energy is liberated in the form of electrons from the photosynthetic molecule or from the chlorophyll molecule. So what happens? The chlorophyll molecule absorbs the solar energy in the form of photons. Okay? Whenever the question comes, what is that form in which solar energy is trapped by the green plant or by chlorophyll or by the chloroplast? So the answer will be photons. So photons of radiations are absorbed by the chlorophyll molecule. It can be any chlorophyll, A, B, then xanthophyll, carotene, that we have learnt in our previous class. They all trap the solar energy, and when they trap the solar energy, they become so much heated up, and they change their atomic state changes. It gets heated up and so much excited that the electrons from their atom, it goes out. Okay, and the electrons which is liberated by the chlorophyll, it is absorbed by a set of substances which are present or which are a part of this photosystem. Okay, so one substance absorbs, takes the electron, uses it, and it transfers the electron to the next. The next uses electron, transfer to the next. And in this way, a series of electron transport system or an electron transport chain is formed. Okay, so that we are going to learn. Basically, whenever we study about photosynthesis, we have two types of photosystem. One is photosystem 1 and another one is photosystem 2. Okay, so photosystem 1 refers to the molecules of chlorophyll or the pigment chlorophyll that absorbs solar energy in around 700 nanometer of wavelength. Okay, how it absorbs, that we have learnt in our previous class. Okay, you well know that high photosynthetic rate occurs when the chlorophyll absorbs solar energy radiation under 680 and 700. So photosystem 1 comprises of all the chlorophyll molecule which absorbs solar energy radiations or photons of radiation under 700 nanometers. Okay, and this was named as photosystem 1 because this was discovered first. This is followed by photosystem 2, which comprises of chlorophyll molecules that absorb the solar energy radiation under which wavelength 680 nanometers. Okay, so याद रहेगा P700 we call as photosystem 1 and P680 we call it as photosystem 2. ठीक है, and both of them are made up of chlorophyll. Okay, and in our previous class we have learned chlorophyll A is the main pigment, whereas chlorophyll B, xanthophyll and carotenoid, these all are what? These all are the accessory pigment or the supporting pigment which absorb the solar energy and transfer it to chlorophyll A. When chlorophyll A gets all the energy or photons from all the chlorophyll, it changes itself into excited state and it liberates electron. ठीक है ना, जब क्लोरोफिल ए अपने सराउंडिंग्स क्लोरोफिल बी, xanthophyll, कैरोटीन से बहुत सारी फोटॉन्स ले लेगा, तो ये सब किसको पास कर रहे हैं? क्लोरोफिल ए को. ठीक है ना, क्लोरोफिल ए जब इन सारे फोटॉन्स को ले लेगा तो क्लोरोफिल ए के जो मॉलिक्यूल्स है वो किस में चेंज हो जाएंगे? एक्साइटेड स्टेट में आ जाएंगे. ओके, एंड दे विल रिलीज इलेक्ट्रॉन. अब उस इलेक्ट्रॉन का क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन, सपोज करो कि यहाँ पे ये फोटो सिस्टम
वन है। ओके, फोटो सिस्टम वन में क्या क्या है मैंने आपको बता दिया। ओके, सारे क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल्स हैं सारे तरह के। यहाँ से क्लोरोफिल ए ने जब वो एक सारे फोटॉन्स को ले लिया, वो एक्साइट हुआ तो उसने इलेक्ट्रॉन को लिबरेट कर दिया, and this electron is taken by many substances. This electron actually transfers to many substances. Suppose करो कि हम जो substances हैं लाइन अप में उनको हमने नाम दे दिया C1, C2, C3, C4, ठीक है ना। What are these C? These C are certain substances which are present inside the inside the thylakoid or inside the grana or where the chlorophyll is present, and they take electron and pass it to the next. C1 take electron from chlorophyll A and passes to C2. C2 takes the electron from C1 and passes to C3, and in this way the series goes on. This whole series, which consists of different substances that take and give the electron to the next one, is known as electron transport chain. Okay, because in this chain, one substance is transferring electrons from itself to the another one. So this is whole is known as electron transport chain, and this electron transport chain along with the system is known as electron transport system. Okay, it is known as electron transport system, and today we are going to learn about the electron transport system both from P700 and P680. Okay, and this electron system is of two types. One is cyclic and another one is non-cyclic. Okay, cyclic में क्या होता है? Suppose it starts from PS1. Okay, the electron goes here, and it has been seen that the last substance which receives the electron, it again gives the electron back to PS1. Okay, so here the cycle becomes cyclic. Okay, so PS1 is involved in the cyclic electron transport chain. Okay, whereas when P680 is involved, it is non-cyclic. So what happens whenever the 680 photosystem, when this 680 photosystem absorbs solar energy, the chlorophyll A gets excited, it liberates electron. The electron passes to C1, then C2, C3 or many more. Okay, and it passes to 700. This is photosystem 2. This is photosystem 1. It has been seen that whenever this electron passes from 680 or photosystem 2, the electron don't come back to 680, the electron passes to 700 or photosystem 1. This chlorophyll gets excited and it liberates electron, okay, which again passes from C1, then C2, then C3. Okay, here the electron which comes to the last one don't come again to 680 or to 700. Okay, and this type of electron transport system is known as non-cyclic. Okay, तो जहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक साइकिल में रिवॉल्व मूव कर रहा है एक सब्सटेंस से दूसरा सब्सटेंस, वहाँ पे हम उसे कहते हैं साइक्लिक ईटीएस। और जहाँ पे इलेक्ट्रॉन 680 से रिमूव होके वापस 700 के पास या 680 के पास नहीं आ रहा है, दैट इज नोन एज द नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ठीक है, नाउ व्हाट आर दीज C1, C2, C3, C4? They are system of certain biomolecules which are present in the plants, okay, which have the ability to take electron and transfer it to the next one. And here certain substances, for example cytochrome, ये C जो है ये cytochrome के लिए आएगा। Cytochrome is a biomolecule, okay, it's a biological substance which has the ability to take electron from one
from chlorophyll and it transfer it to the next cytochrome. Okay, or next substance which is present in the electron transport chain. So it can be cytochromes, different types of cytochrome, and we are going to learn the names of different types of cytochrome. For example, plastocyanin, प्लास्टोक्यूनोन, ये सब अभी हम स्लाइड्स में पढ़ेंगे. ठीक है, इतना कंसेप्ट समझ में आया कि व्हाट इज PS1, व्हाट इज PS2 एंड व्हाट इज द साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक. अगर इतना कंसेप्ट समझ में आया तो ही हम कहाँ पे जा पाएंगे. वी कैन गो टू द स्लाइड सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड, बट definitely by seeing the files you will definitely understand what is this. अभी हो सकता है ये सारा illusion सा लग रहा है कि ये है क्या, लेकिन I'm sure that after seeing the notes and the slide you will get a knowledge how this P700, P680 and how the cyclic and non-cyclic transformation of electron takes place. So any doubt here or should I move further? Yes बच्चों, कोई डाउट है आगे? नहीं तो मैं आगे चलूं? यस मैम. ओके, ठीक है, तो आई विल मूव फर्दर. So I think the first page is visible to you. Yes? Yes, ma'am. ओके, ठीक है. एक बार यस तो बोल दिया करो ना, उससे ये लगेगा मुझे कि सुनाई दे रहा है, नहीं तो मुझे, क्योंकि हम उसके बाहर आ जाते हैं ना सिस्टम. यस. तो टुमारो वी हैव सीन. हाँ बोलो बोलो. हाँ ओके. सो कल जो है आपके जो बायोकेमिकल इक्वेशन थी फोटोसिंथेसिस की, उसमें कुछ गलत था तो उसको सही करा है. इसमें बस आप ये लाइट के ऊपर, ये जो एरो है इसमें लाइट ऊपर लिख देना और क्लोरोफिल नीचे लिख देना. दोनों चीजें मैं देख रही थी पर दोनों लाइट और क्लोरोफिल एक साथ ऊपर नीचे आ नहीं पाया. ओके, सो दिस इज द बायोकेमिकल इक्वेशन फॉर फोटोसिंथेसिस. 6CO2 12H2O. Whenever 6CO2 and 12H2O is formed, then C6H12O6 and 6H2O and 6O2 will be formed. जब यहाँ पे आपका 12H2O है, इधर पे जब आपका 12H2O है, तो यहाँ पे कितना फॉर्म होगा? 6H2O. और आपको ये याद रखना है. ठीक है. देन एक और आपका क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज ऑक्सीडाइज एंड व्हाट इज रेड्यूस्ड. ओके, सो हेयर इसमें आपका क्या ऑक्सीडाइज और क्या रेड्यूस्ड है. तो यहाँ पे आपका जो 6CO2 है, ये मैंने आपको कल भी बताया था. Since the carbon atoms here are 6 and 6 to the 12 oxygen are here in CO2, but when we see here this CO2 changes to C6H12O6, the oxygen number is reduced to half. Here the oxygen number in CO2 is 12, but in C6H12O6 the oxygen number is what? 6. So obviously it is reduction. ऑक्सीजन कम हो गया, इसका मतलब क्या है? रिडक्शन. या हाइड्रोजन ऐड हो जाए तो उसका मतलब रिडक्शन. यहाँ पे हाइड्रोजन 6CO2 के पास there was no hydrogen, but here in C6H12O6 there is hydrogen. Okay, therefore the source for, so if the question comes what is the source for production of glucose, then what will be the answer, students? Yes, if the question is what is the source for production of C6H12O6, so the answer will be, it is CO2. Okay, so or we can say that CO2 is reduced to glucose, right? Now we'll see oxidation. What is oxidized to what? The source for oxygen production is actually water. अगर हम पानी नहीं देंगे plants को तो oxygen produce नहीं होगा, because oxygen, for release of oxygen, what is needed? Water is needed. Okay, so here now we'll see how it is oxidized. Here we have 6 to the 12 atoms of hydrogen, whereas in oxygen we cannot see a single atom of hydrogen. So when the hydrogen is removed, it becomes oxidation. तो ये oxidation हो गया. दूसरी बात क्या है यहाँ पे? Here the number of oxygen were 6 atoms of oxygen, but in 6O2 the number of atoms are 12. Okay, therefore it means that 6 atoms of oxygen are added. Therefore the oxidation of H2O will lead to formation of what? It will lead to formation of, yes, it will lead to the formation of the oxidation of, फिर से बता रही हूँ,
आपको फिल इन द ब्लैंक पूरा करना है। द ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन। Oxygen. ऑक्सीजन, ठीक है ना? ओके, वेरी नाइस। आई थिंक मुझे यहाँ से शुरू करना था लाइट रिएक्शन से, ठीक है ना? ओके, सो विल स्टार्ट रीडिंग फ्रॉम लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन मैंने आपको बता दिया था, लाइट रिएक्शन इज अ रिएक्शन which is involved in process of photosynthesis and for which light is necessary. Okay, so there are basic steps in light reaction. One is the first step for light reaction to take place is light absorption. और ये light absorption कौन करेगा बताओ बेटे, फटाफट आंसर बताओ ताकि मैं आगे निकलूं। यस, लाइट एब्जॉर्प्शन कौन करेगा? ऑब्वियसली द क्लोरोफिल। क्लोरोफिल, ठीक है। ओके, नाउ द सेकंड इवेंट इन लाइट रिएक्शन आफ्टर लाइट एब्जॉर्प्शन इज द स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इज नोन एज photolysis of water, which you have read in class 10. क्लास 10 में क्वेश्चन आता था ना, व्हाट आर द थ्री मेजर इवेंट्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, तो वही हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। बट वहाँ पे डार्क रिएक्शन और लाइट रिएक्शन का कोई कंसेप्ट नहीं था, यहाँ पे उन दोनों को भी लिया गया है। ओके, तो लाइट एब्जॉर्ब हो गई, उसके बाद सेकेंड इवेंट होता है कि उस लाइट एनर्जी से दिस लाइट एनर्जी इज यूज्ड फॉर स्प्लिटिंग ऑफ वाटर. Water molecule will split to form electrons and protons. That will see, and that is known as photolysis. What is photo? Photo means light and lysis means splitting. So the splitting of water is photolysis to release protons and electrons, right? The third event is the oxygen release. Oxygen की release अगर आप कोई पूछे कि light reaction में होती है कि dark reaction, तो आपका आंसर क्या होगा? ऑक्सीजन लाइट रिएक्शन होती है लाइट रिएक्शन। Light reaction. ओके, यहाँ पे बहुत छोटी छोटी बात है जो आपको बहुत ध्यान से सुननी पड़ेगी, नहीं तो ये मिस हो जाएगा और आप इसको नहीं समझ पाओगे। अगर आप इस चैप्टर को अपने आप पढ़ने लगोगे तो ये आपके सारा ऊपर से चला जाएगा, इसीलिए आपको बहुत ध्यान से रखना है, ये सुनना भी है। ऑक्सीजन रिलीज कब होगी? लाइट रिएक्शन में, ठीक है। तो डार्क रिएक्शन आपको गलत ऑप्शन वहां पे हो जाता है। देन तो दोनों इवेंट आपके वाटर स्प्लिटिंग एंड ऑक्सीजन रिलीज दोनों के दोनों ही आपके लाइट रिएक्शन में होते हैं, क्योंकि ये जो ऑक्सीजन है ये रिलीज हुआ है वाटर के स्प्लिटिंग के बाद। अभी तो हमने पढ़ा था ना कि व्हाट इज द सोर्स फॉर रिलीज ऑफ ऑक्सीजन, सो दैट आंसर उसका क्या था? वाटर। ओके, तो वाटर स्प्लिट होगा तो ऑक्सीजन भी रिलीज होगा। हाँ, वाटर ऑक्सीजन भी रिलीज होगा, प्रोटॉन भी रिलीज होंगे, इलेक्ट्रॉन भी रिलीज होंगे, ठीक है। थर्ड आगे ये थर्ड फोर्थ फॉर्मेशन ऑफ हाई एनर्जी केमिकल इंटरमीडिएट। लाइट रिएक्शन में आपके दो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स बनेंगे, ATP एंड NADPH, which are used in dark reaction. ये याद आपको रखना है कि जो ATP और NADP है, यस, ये आपको ध्यान रखना है कि जो ये ATP और NADPH है, दे आर फॉर्म्ड इन लाइट रिएक्शन बट दे आर यूटिलाइज्ड वेयर? They will be utilized in the dark reaction. बट ये बनेंगे कहाँ पे? ये बनेंगे लाइट रिएक्शन में, ठीक है। ओके, नाउ ये आपको सबको लिखने की जरूरत नहीं है, ये लेसन होने के बाद मैं इसको डाल दूंगी आपके गूगल क्लासरूम में, ठीक है। तो सारा कुछ लिखने, बस अभी अपने आप समझ लो, और हाँ एडिशनली मैं कुछ बोल रही हूँ तो अपनी कॉपी में नोट करते जाओ, ठीक है। ओके, नाउ द पिगमेंट्स आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू टू डिस्क्रीट लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स विथ फोटो सिस्टम 1 एंड फोटो सिस्टम 2। अभी जो मैंने आपको फोटो सिस्टम 1 एंड फोटो सिस्टम 2 बताया था वो बनते हैं, दे आर व्हाट? दे आर एक्चुअली लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्सेस और लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम। नाउ लेट अस सी व्हाट इज लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। ये है आपका लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स का डायग्राम। इस लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स के डायग्राम में आप देख सकते हो कि कुछ ग्रीन कलर के राउंड राउंड ओवल स्ट्रक्चर्स है। तो ये ग्रीन कलर के राउंड स्ट्रक्चर्स क्या है? पिगमेंट मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना। इनका काम क्या है? देयर वर्क इज टू एब्जॉर्ब द फोटॉन्स ऑफ रेडिएशन। यहाँ पे क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी अलग अलग नहीं बोला गया है, सारे क्लोरोफिल मिल के फोटॉन्स ऑफ रेडिएशन को क्या करेंगे? फोटॉन्स ऑफ रेडिएशन को दे विल एब्जॉर्ब, ओके, एंड they all the accessory pigments will transfer their photons to chlorophyll 1 chlorophyll A। यहाँ पे इस एक जो बीच में ना जहाँ से एरो ये शुरू हो रहा है,
इसके नीचे वाला जो है इसको आप क्लोरोफिल ए मार्क कर सकते हो, क्योंकि यही स्टार्ट करेगा chain reaction. Okay, so all the chlorophyll, they will pass their photons to chlorophyll A, and chlorophyll A will be, by gaining photons, it will get excited, and after excitation it will release energy, which it will release electron. Okay, now the electron, ये जो arrow आपको दिख रहा है ना blue color का, this arrow shows that it is the release of energy, it is the release of electron. chlorophyll A ने electron release किया और ये arrow के इस डायरेक्शन में ऊपर मूव कर दिया. Now there are certain primary acceptors which are present in the chlorophyll molecule. जो chlorophyll molecule जहाँ पे present होता है, thylakoid में ये सारा कुछ हो रहा है, ठीक है, स्ट्रोमा के अंदर ये सब कुछ हो रहा है, ये event. Okay, so there certain primary acceptors are present which will take this electron. Okay, so इस तरह के light harvesting system complexes कितने तरह के होते हैं? 2. One is photosystem 1 and another one is photosystem 2. ओके, और अगर लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स का डायग्राम बनाने के लिए आता है तो आपको पूरा बनाना है. प्राइमरी एक्सेप्टर, ये एरो का मतलब क्या है? एरो का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से ट्रांसफर हो रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है. ये ग्रीन है आपके पिगमेंट मॉलिक्यूल्स. रिएक्शन सेंटर है आपका क्लोरोफिल ए, आप बुक में लिख सकते हो. रिएक्शन सेंटर का मतलब क्या है? क्लोरोफिल ए, ठीक है. एंड फोटॉन्स आपकी आ रही है सनलाइट से. ओके, मूविंग डाउनवर्ड्स. ओके, नाउ द पिगमेंट्स, ये आपको मैंने अभी बताया है कि PS1, इन PS1 कर्सर भाग जाता है बेटा. यस, ओके, इन PS1 रिएक्शन द हाईएस्ट पीक इज एट, मतलब जो PS1 के जो रिएक्शन होते हैं फोटोसिस्टम 1 के, वो सब किसके अराउंड होते हैं? 700 नैनोमीटर. और ये जो PS2 है टेक्स प्लेस अराउंड 600 नैनोमीटर, मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ. ओके, नाउ विल स्टार्ट रीडिंग अबाउट द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम. ओके, in the electron transport system, reaction center of photosystem 2, जो मैंने आपका अभी जो सेकंड डायग्राम बोर्ड पे बनाया था, उसमें फोटोसिस्टम 2 जो है वो क्या कर रहा है? वो ऐसे फोटोसिस्टम 1 भी करेगा. रिएक्शन सेंटर्स ऑफ फोटोसिस्टम 2 विल एब्जॉर्ब लाइट ऑफ 680 नैनोमीटर. ओके, 680 नैनोमीटर्स की लाइट कौन एब्जॉर्ब करेगा? फोटोसिस्टम 2. और 680 nm कहाँ, उसका कलर क्या होता है? रेड रीजन. ओके, causing electron to become excited. These electrons are picked up by the electron acceptor which passes to the electron transport system consisting of cytochromes. अब आपको ये लाइन समझ में आ गई होगी बेटा? ये yes, ma'am. ये 3-4 लाइन समझ में आ गई ना, कि वहां से क्लोरोफिल ए एक्साइट होगा, इलेक्ट्रॉन्स को लिबरेट करेगा, और इलेक्ट्रॉन्स को जो एक्सेप्ट करेगा, प्राइमरी एक्सेप्टर्स होते हैं कुछ, और उन सब में मेनली जो ये एक्सेप्टर्स होते हैं और जो ट्रांसपोर्ट करते हैं, उनका नाम क्या होता है? उनका नाम होता है साइटोक्रोम. ठीक है, ओके. इलेक्ट्रॉन्स, और इसके डीप में नहीं जाना कि कौन कौन से साइटोक्रोम्स होते हैं, वो और डेप्थ में भी इतना आपके उसमें नहीं है, सिलेबस में नहीं है. ठीक है, क्योंकि अगर उसके डेप्थ में जाओगे तो बहुत सारा चीज़ अभी और पढ़ना पड़ जाएगा आपको. ऑलरेडी बहुत सारा है, इतना ही पढ़ लो तो भी काफ़ी, क्योंकि बहुत सारा पढ़ने के चक्कर में जो बेसिक नॉलेज है आपकी 11th की वो भी नहीं हो पाती है. इसीलिए उतना करो जितना आप कर पाओ, और हाँ, अगर उतना कर पाओ और अच्छे से तो आप एक्सटेंड करो अपनी नॉलेज. ठीक है ना. लेकिन होता क्या है, बच्चे बहुत ज़्यादा बहुत तरह तरह की बुक्स खरीद लिए, साइड बुक्स, और ये सब अच्छी बात है, बट आप एनसीईआरटी को नहीं छोड़ना है. अगर आपने एनसीईआरटी को छोड़ के सब कुछ पढ़ लिया तो कोई फायदा नहीं है. सबसे पहले एनसीईआरटी, उसके बाद कोई भी साइड बुक, उसको कंप्लीट करो सबसे फर्स्ट. उसके बाद आपको एक्स्ट्रा नॉलेज चाहिए तो इंटरनेट है, क्लासेस हैं, और आपके साइड बुक्स भी हैं. ठीक है, ओके. देन द इलेक्ट्रॉन्स आर पास डाउन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एंड देन टू द पिगमेंट ऑफ PS1. मैंने आपको बताया था ना, PS2 से इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके वापस किसके पास आ गया है? PS1. ठीक है ना. अब PS1 से निकल के ये वापस PS2 के पास नहीं जाएगा, इसीलिए ये कौन सा हुआ? नॉन साइक्लिक. ओके, अब हम वापस नीचे आते हैं. यस, इलेक्ट्रॉन्स इन PS1 ऑल्सो गेट एक्साइटेड ड्यू टू द लाइट ऑफ वेवलेंथ 700. PS1 में 700 वेवलेंथ की लाइट होती है. ठीक है, और वहां से फिर से इलेक्ट्रॉन जो है दैट विल बी एक्सेप्टेड बाय अनदर एक्सेप्टर मॉलिक्यूल हैविंग अ ग्रेटर रेडॉक्स पोटेंशियल. देखो, इलेक्ट्रॉन वो एब्जॉर्ब करेगा जिसका रेडॉक्स पोटेंशियल ज्यादा होता है. इफ एनी सब्सटेंस इज एब्जॉर्बिंग और अट्रैक्टिंग इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स इट, इट मीन्स इट शुड हैव अ ग्रेटर रेडॉक्स पोटेंशियल. अगर उसका रेडॉक्स पोटेंशियल कम हुआ तो कोई भी सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब नहीं कर सकता है.
So you have to remember here one thing, that electron passes from a substance which has lower redox potential to a substance which has a higher redox potential. ठीक है ना, तो ही electron travel होगा. Now when electron passes in the downhill direction, डाउनहिल मतलब कि डाउनहिल मतलब जैसे कि अब आपको मैंने बताया कि जो प्राइमरी एक्सेप्टर होता है वो अपहिल होता है, सबसे ऊपर है, और धीरे 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 इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम से पास होके माउंटेन की तरह नीचे आ रहा है. सो दैट इज डाउनहिल डायरेक्शन. और ये डाउनहिल अभी हम ट्रांसपोर्ट वाले लेसन में एक्चुअली डिलीटेड में चला गया, बट एक बार आपको बता दूंगी तो क्लियर हो जाएगा डाउनहिल रिएक्शन क्या होता है. ठीक है, अभी यहाँ पे नहीं, अभी बस आप ये समझो कि सबसे ऊपर की एनर्जी आपकी प्राइमरी एक्सेप्टर के बाद है, उसके बाद धीरे 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 वो प्राइमरी एक्सेप्टर से इलेक्ट्रॉन दूसरे के पास पहुंचा, दूसरे एक्सेप्टर के पास, वहां से तीसरे के पास चला. तो ये जो स्टेप्स में नीचे जा रहा है इलेक्ट्रॉन, इसको कहते हैं डाउनहिल डायरेक्शन. ठीक है ना. एंड एनर्जी इज रिलीज. दिस इज यूज्ड टू रिड्यूस द एटीपी टू एडीपी एंड एनएडीपीएच टू एनएडीपीएच. अच्छा, इसके लिए मैं एक बार ये एटीपी से एडीपी कैसे बनी, देखो यहाँ पे ऐसे बता रही हूँ. वैसे तो मैं ADP is actually this adenosine diphosphate. You can write in your copy. ADP, D means dog wala. Okay. ADP is adenosine diphosphate, and when it takes the electron, ADP is changed to ATP. ठीक है. दूसरी बात फिर से बता रही हूँ कि जो ADP है, if it takes one phosphate, it changes to ATP. ठीक है. तो इस तरह से जो एडिनोसाइन डाइन्यूक्लियोटाइड है, it will add one phosphorus and the electron is used to reduce this ADP to ADP. Similarly जो दूसरा पैकेट ऑफ एनर्जी है जो कि NADP है, okay, it will also reduce and it will change to NADPH. ठीक है, जो आपको मैंने कल बताया था. यहाँ पे डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट है NADP में. ये जो NADP है यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा, और इससे क्या हो जाएगा, प्रोटॉन जब ऐड हो जाएगा तो उसका रिडक्शन हो जाएगा. ओके, तो यहाँ पे ये NADPH हुआ है. तो दोनों ही रिड्यूस हुए. ADP रिड्यूस होके क्या बना रहा है, ATP, और NADP जो है वो रिड्यूस होके क्या बना रहा है, NADPH. ओके, द होल scheme of transfer of electrons is called Z scheme due to its shape. अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो Z scheme है, इसमें एक Z जैसा डायग्राम बन गया है. Z में आप देख सकते हो कि 3 आपकी पिंक लाइन बन गई है. ये 3 आपकी पिंक लाइन बन गई है. डार्क ग्रीन इज लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स विच इज PS2. वहां से इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ और किसके पास गया, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर. कौन से कलर का यहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर दिख रहा है, इट इज पिंक. पिंक. ठीक है ना. तो एरो ऊपर चले जा रहा है. ओके, नाउ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो है, इट विल पास द इलेक्ट्रॉन टू अ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जिसमें बहुत सारे साइटोक्रोम्स आएंगे, एंड फाइनली द इलेक्ट्रॉन विल मूव टू व्हाट, लाइट ग्रीन कलर का जो ओवल का आपको दिख रहा है, दैट इज लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स. बताओ आप कहाँ पे इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आया, this will be P 700. yes, it will be P 700. ठीक है ना. स्टार्ट हुआ है 680 से और आया कहाँ पे है, 700 पे. ठीक है ना. अब 700 फिर से एक्साइट हो गया और उसने फिर इलेक्ट्रॉन जब लिबरेट किया तो उसने जाके जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला है उसके वजह से NAD, यहाँ पे एक और तरह से आपको दिया कि दिस NADP, इसको 2 तरीके से लिख सकते हैं. आइदर यू कैन राइट NADP गेट रिड्यूस टू NADPH, और यू कैन राइट इन दिस वे ऑल्सो. ये आप फॉलो कर सकते हो, बुक में भी इसी तरह से लिखा है NADP प्लस. ओके, एंड व्हेन इट इज reduced, this electron is used to reduce NADP plus to NADPH. ठीक है, तो यहाँ पे रिडक्शन हो गया. उसी तरह से एक रिडक्शन पहले भी हुआ था जब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, फर्स्ट वाले इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से निकला तो वहां पे ADP जो है वो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से कंबाइन करेगा और बनाएगा ATP. तो यहाँ पे 2 तरह से एनर्जी मॉलिक्यूल्स, एनर्जी पैकेट्स ऑफ एनर्जी फॉर्म होंगे. वन इज ATP और दूसरा है NADPH. ओके, नाउ दिस नीचे आपको एक दिख रहा होगा कि ये जो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है, ओके, इसमें क्या हो जाएगा, अगर ये ऐसे चलते रहा तो लाइट इलेक्ट्रॉन्स की शॉर्टेज हो जाएगी.
क्योंकि इलेक्ट्रॉन फोटो सिस्टम 1 से निकल के वो रिडक्शन में यूज हो गया है। अब जो इलेक्ट्रॉन है ये इसकी शॉर्टेज की वजह से फोटोसिंथेसिस रुक जाएगा। सो देयर शुड बी सम मैकेनिज्म टू प्रोवाइड अ कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रॉन टू लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स 1। P680 को इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत हमेशा पड़ती रहेगी, नहीं तो फिर वो क्या हो जाएगा, फोटोसिंथेसिस रुक जाएगा। और इसकी इलेक्ट्रॉन की शॉर्टेज को, सप्लाई को इंश्योर करने के लिए देयर विल बी वन इवेंट विच इज नोन एज फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। तो आप एक देख सकते हो कि एक इक्वेशन लिखी है फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, वहां पे एक एरो बन रहा है जो डार्क ग्रीन लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स के पास गया है, ठीक है ना। तो उसका मतलब कि यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं वो वापस कहाँ पे चले गए, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स के पास चले गए। और इस तरह से दिस लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स P680 is not devoid of, it will not get shortage of electrons because the supply of electrons is maintained by photolysis of water, because the photolysis of water will release electrons. Okay, यहाँ पे photolysis of water को और अच्छे से explain किया है। It is what it is, the release of electron that provide electrons to PS2। ये याद रखना है कि photolysis of water हमेशा electrons को PS2 पे सप्लाई करेगा, PS1 पे सप्लाई नहीं करेगा। This has to be remembered by you. PS2 will always get electron from photolysis of water. PS1 will never get electrons from photolysis of water. ठीक है, so oxygen is also released during this process। और ये equation हुई आपके बुक में जो इक्वेशन मेंशन करी वो 2H2O से लेके है, ठीक है ना। तो ये पहली वाली जो है नीचे, दिस वन इज द yes 2H2O when it get lysed by the use of photons, it gets broken into 4 protons, 4 H plus मतलब proton, 4 protons, 2 atoms of oxygen and 4 atoms of 4 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। 4 प्रोटॉन्स, 4 इलेक्ट्रॉन्स और 2 ऑक्सीजन के एटम्स बनते हैं whenever the photolysis of water take place। और ये अगेन आपका एक एमसीक्यू क्वेश्चन बन जाता है यहाँ पे। और आपको पता होना चाहिए कि एक वाटर का मॉलिक्यूल जब ब्रेक होगा तो कितना प्रोटॉन और कितना इलेक्ट्रॉन निकलेगा, और जब 2 होंगे तो कितने निकलेंगे। नीचे वाले इसमें ये वायलेट वाला, ग्रीन वाला, ये वाले जो इक्वेशन इसमें ये शो हुआ है कि H2O जो है, एक सिंगल H2O जब ब्रेक होता है तो कितना प्रोटॉन और कितना इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है। तो 2 प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन एंड हाफ ऑक्सीजन। 2 अगर H2O आ जाएगा तो ये हाफ हाफ बन के क्या बन जाएगा, 1O2। ओके, लेट अस मूव फर्दर। सो दिस इज अगेन फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, 2 मार्क्स के 3 मार्क्स के क्वेश्चन में ये आता है, ठीक है। Yes, the next topic that we'll study today is, time क्या हुआ, 12:44। Okay, the next topic that we'll learn today is photophosphorylation. This is very important topic, and again it is it can be a part of MCQ, it can be a part of 3 marks, and as well as it can be a part of 5 mark question, ठीक है। So you should know what is photophosphorylation. Photophosphorylation, it is the process of utilizing light energy from photosynthesis and convert ATP to ATP. Photolysis, ये photo means light, phosphorylation means addition of phosphorus, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट ADP हुआ, उसमें एक फॉस्फोरस मिल जाता है तो वो क्या बन जाता है, ATP, ठीक है। तो उसको क्या कहते हैं, फोटोफॉस्फोराइलेशन, बिकॉज इट इज यूटिलाइजिंग लाइट एनर्जी टू कन्वर्ट ATP इंटू ADP इंटू ATP। और ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट का सोर्स क्या रहेगा, ये सारे इनऑर्गेनिक फॉस्फेट वाटर में प्रेजेंट हैं, प्लांट में ऑलरेडी प्रेजेंट है, बहुत सारे न्यूट्रिएंट होते हैं, तो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट भी वहाँ पे प्रेजेंट होता है, उससे कंबाइन करके ADP ATP में चेंज होता है। दिस इज नोन एज फोटोफॉस्फोराइलेशन। नाउ दिस फोटोफॉस्फोराइलेशन इट इज ऑफ 2 टाइप, 2 तरह का होता है ये। वन इज नोन एज नॉन साइक्लिक एंड अनदर वन इज नोन एज साइक्लिक, जो मैंने अभी आपको बताया। Now you can see the same diagram I have drawn in the board also. बोर्ड में सेम ये डायग्राम आपका बना था, एक था नॉन साइक्लिक और दूसरा था साइक्लिक।
तो फर्स्ट डायग्राम जो आपको दिख रहा है, जो जिसमें जेड स्कीम फॉलो हो रही, व्हाट इज दिस वन इज साइक्लिक और नॉन साइक्लिक, या क्या क्लियर मैम होगा? नॉन साइक्लिक। नॉन साइक्लिक, क्योंकि यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन है, लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पे यूज हो गया है? इट इज यूज रिड्यूस फॉर होने में। रिडक्शन। हाँ, इट इज यूज फॉर रिडक्शन फॉर NADPH टू NADP प्लस टू NADPH। तो इलेक्ट्रॉन वापस आया नहीं लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स के पास, 680 के पास, तो ये नॉन साइक्लिक हुआ। जबकि साइक्लिक में क्या है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास जाने के बाद वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के पास गया, वहां से वो वापस इलेक्ट्रॉन घूम के P700 के पास आ जाता है, और ये रिएक्शन होती रहती है, होती रहती है, होती रहती है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, सेकंड वन हुआ आपका साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, और फर्स्ट वाला हुआ आपका नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। और यही अगर आपको डायग्राम याद हो गया हो, तो डायग्राम के हेल्प से आप इजीली दोनों में डिफरेंसेस लिख सकते हो, बिकॉज डिफरेंसेस अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विच नॉर्मली कम्स इन एग्जाम। अगर आपको ये डायग्राम याद हो जाएगा, तो यहाँ से आप दोनों ही साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में यू कैन इजीली राइट द डिफरेंसेस। पहला डिफरेंस आपको यहीं से डायग्राम से देखने के लिए मिल रहा है कि साइक्लिक नॉन साइक्लिक में क्या है, बोथ द टू फोटो सिस्टम्स आर इन्वॉल्व, और साइक्लिक में क्या है, ओनली वन फोटो सिस्टम इज इन्वॉल्व, दैट इज P700। साइक्लिक सॉरी नॉन साइक्लिक पहले वाला है ना, नॉन साइक्लिक में ATP की फॉर्मेशन हुई है, NADPH की फॉर्मेशन हुई है, उनका रिडक्शन हुआ है। जबकि जो आपका साइक्लिक वन है, वहां पे ओनली एंड ओनली ATP विल बी फॉर्म, NADPH की फॉर्मेशन नहीं होती है साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे एक और चीज देखा कि फोटोलाइसिस ऑफ वाटर केवल कहाँ पे होता है, नॉन साइक्लिक में। पहले वाले में फोटोलाइसिस ऑफ वाटर हुआ है, दूसरे वाले में फोटोलाइसिस ऑफ वाटर नहीं होता है। ठीक है, तो इस तरह से करके हम डिफरेंसेस लिख सकते हैं। ओके, नाउ यू कैन सी द डिफरेंसेस, जस्ट गो थ्रू द डिफरेंसेस। एनीबडी कैन रीड? कोई रीड कर सकता है फटाफट, जो रीड कर ले? यस मैम। ओके, चलो रीड करो। मैम नॉन साइक्लिक में बोथ फोटो सिस्टम 1 एंड 2 आर इन्वॉल्व्ड, और यस, उसमें ओनली फोटो सिस्टम 1 इज इन्वॉल्व्ड। वन इज इन्वॉल्व, वेरी नाइस। ओके, देन एंड इसमें इलेक्ट्रॉन आर नॉट रिसाइकल्ड। ओके, इलेक्ट्रॉन रिलीज बाय फोटो सिस्टम 1 इज रिसाइकल्ड बाय फोटो सिस्टम फोटो 1। सिस्टम वन। ओके, जो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं वो वापस वहां से निकल के वापस उसके पास आ जाएंगे। ठीक है, देन थर्ड, Both ATP and NADPH are produced, and there only ATP is produced. ओके, नेक्स्ट, Photolysis of water takes place. No photolysis of water takes place. ओके, एंड द लास्ट वन, Oxygen is released due to photolysis of water. No oxygen is released. okay. So now you understood how the non-cyclic photophosphorylation and cyclic photophosphorylation takes place. But the main aim of this event is to form energy packet of cell. Non-cyclic में दोनों energy packets बन सकते हैं, ATP भी बन जाएगा, NADPH भी बन जाएगा, जबकि cyclic only leads to formation of ATP. So I hope you have understood the class. Okay, and in tomorrow's class we are going to learn about the osmotic hypothesis of ATP formation. Okay, ये हम कल पढ़ेंगे। इस तरह का डायग्राम है बुक में, और जो आपके पास, इफ यू हैव अ ओल्ड बुक यू विल नॉट फाइंड दिस डायग्राम, द ओल्डर डायग्राम इज देयर इन द बुक एंड दिस इज द डायग्राम फ्रॉम द न्यू बुक। ओके, नई बुक में ये डायग्राम चेंज होके आया है। सो आप ये वाला डायग्राम जो है आप अपनी बुक में कल जब मैं दिखाऊंगी, यू कैन बी रेडी विद योर पेंसिल, और जहाँ जहाँ पे है कुछ कुछ डायग्राम सब सेम है, कुछ एडिशन हुआ है, तो आप ये एडिशन जो भी चीजें हैं यहाँ से देख के उसमें कॉपी कर सकते हो अपनी बुक में। ठीक है ना? हाँ बोलो। Ma'am, can I leave? कौन? Mama, Teetsi. Where you have to go, Tetsi? Ma'am, I have to come school. हाँ? Ma'am, I have to come school for the prize money. ओके, ये तेजस्वी, फिर मैंने सुन लिया है, आपके अटेंडेंस में लगा दूंगी, फिर लीव द क्लास। ओके, सो Okay, ma'am. Thank you. स्टूडेंट्स, यस आई एम गोइंग अगेन बैक टू द बोर्ड।
ओके, मैं एक यहाँ पे आपको एटीपी की फॉर्मेशन बतानी थी, तो मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। Yes, adenosine diphosphate. Okay, ये this ADP is adenosine di. Okay, DI diphosphate. यहाँ पे इसका मतलब कि फॉस्फेट के कितने एटम्स हैं? 2 एटम्स, ठीक है। When it combines with inorganic phosphate, I को छोटा करके लिखते हैं और वहाँ पे लिख देते हैं P. So when this ADP combines with inorganic phosphate, then a high packet of energy is form which is known as ATP. And do you know how this ATP is used to release energy? Yes, anyone? ये ATP एनर्जी कैसे रिलीज करता है? ये तो फॉर्मेशन हुआ ATP का, जो कि रिडक्शन हुआ, ठीक है। अब ये ATP जो बन गया है, सपोज इफ यू वांट टू रिलीज, if the ATP wants to release energy, how this ATP will release energy? This ATP will release energy after again changing back to ADP. yes मैम, वो ब्रेक करता है। हाँ, वो ब्रेक करता है। This ATP will change to ADP and energy will be released. Similarly, this ADP will change into AMP, which is adenosine monophosphate, and again energy will be released. जितनी बार ATP फॉस्फेट को निकालता जाएगा, उतनी बार उसमें से क्या रिलीज होती जाएगी? एनर्जी, ठीक है ना। तो टुमारो वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द केमो ऑस्मोटिक synthesis of chemoosmotic ATP formation. Okay, so now it is the time for your attendance, and if you have any doubt, you can ask. मैम वो P700 और P680 तो ठीक है, वो 400 से 500 के बीच का क्यों नहीं है मैम? 400 से 500 के बीच में मैंने आपको बताया, तो फोटोसिंथेसिस का रेट बहुत स्लो होता है, इसीलिए हम उसको पढ़ते नहीं है। और हायर क्लासेस में जाओगे तो वहां भी हम उनको भी पढ़ेंगे डिटेल में, लेकिन अभी जो है, क्योंकि उसका आपने जब ग्राफ में देखा, दोनों जो पीक है वो 680 700 वाला, वो पीक बहुत ज्यादा है। जो बीच वाला है, अच्छा आप वो अच्छा 400 वाला पढ़ रहे हो, पूछ रहे हो क्या? एक मिनट रुको। अच्छा, आप ये पूछ रहे हो कि ये हमने जो ये फोटो सिस्टम पढ़े हैं, वो 680 और 700 वाले क्यों पढ़े हैं, 400 वाला क्यों नहीं पढ़ा, यही पूछ रहे हो ना आप? यस मैम। ओके, तो इसमें क्या है बेटा कि एक्चुअली दोनों ही उसमें एब्जॉर्ब की जाती है, बट अभी तक ये जो भी बुक में, एक मिनट, लेट मी स्टॉप द रिकॉर्डिंग, एक मिनट, बिकॉज द क्लास इज ओवर।